Class, in previous video, we have studied so many things about the basic points of abortion and MTP. MTP is a word related to medical termination pregnancy. Okay, abortion and medical termination pregnancy, both the words are correlated with each other, but their natures are generally different. We know that abortion means something we have to expel out from the female body to developing of embryo is called abortion. But abortion can be many ways. बट मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मीन्स टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कैन बी डन बाय यूजिंग सीजर्स, फोर्सेप्स and different types of medical equipments. Okay, and they go through the physical mode to the female body and cut the portions and then expel out the developing embryo. Okay, now these all are the post process are covered as MTP, medical termination process. Okay, now we are going to discuss the medical termination pregnancy in the second way, but today we have to discuss many more ways to complete the process of abortion. And what is the remaining points? First is we have to do by hormones. Several types of hormones are generally found and they have to inject in the female body to slugs of the endometrium wall through the vagina. Okay, now that time we have to use the mypristin हार्मोन. mypristin हार्मोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जब ये फीमेल बॉडी में इंसेक्ट किया जाता है, इसको इंजेक्ट करने के बाद इट ब्लॉक द वे ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ये प्रोजेस्टेरॉन का जो एक्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है. ठीक है, और देन अगर प्रोजेस्टेरॉन काम करना बंद कर दिया इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, इट मीन्स the child is not growing properly due to the breakdown of endometrium. जो endometrium की लेयर होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है और उस टाइम पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है endometrium का लेयर वो स्लॉग्स ऑफ हो जाते हैं थ्रू दी फीमेल बॉडी, है ना. फीमेल बॉडी के तरफ से वो पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो स्लॉग्स ऑफ होते हैं. तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, but today we will continue the most important this topic because this type of topic are generally asked in the exams. Here we know that the mypristin hormone is very essential, but it required to 9th week of gestation period. Okay, this is the time period where we use to develop an hormonal process to do any case of hormonal changes in female body. Okay, इसके बाद करना possible नहीं होता है. Now second we are going to discuss that vacuum aspiration. Vacuum aspiration means in many movies we have seen that vacuum equipments are generally used to expel out the embryo fetus. Okay, but here we are going to discuss that vacuum aspiration is a generally same related to as a vacuum. It is started at 16th week of pregnancy. Generally we know that 16th week of pregnancy में इस process को तैयार किया जाता है and we have to inserted into the uterus through the vagina. Generally vacuum aspirations are inserted into the female body. ठीक है, इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू दी वेजाइना से होते हुए एंड देन द सक्शन पुल इज प्ले द बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सपेल आउट द बेबी. ओके, ठीक है, जो भी बेबी जो भी बच्चा वगैरह होता है उसको एक्सपेल आउट करने में जो वैक्यूम एस्पिरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो हियर I have told you the two basic points, the hormones and second is vacuum aspirations. Now the third is most important, but it is a so much critical process. Surgical method means we know that surgical method generally consists 16 to 20 weeks. Okay, it is the important process and we have to learn all the time period. It carries in 9th week and it carries 16th week, and this process also carried 16 to 20 week of gestations. Okay, before the developing of baby. So firstly we have to discuss that surgical method generally doctor goes through the physical mode. They have to cut down the basic parts and important sections of female body and try to expel out their baby which are going to develop. Okay, before birth is called सर्जिकल मेथड, बट इट इज स्टार्टेड इन बिटवीन 16 to 20 वीक. जनरली हम लोग सर्जिकल मेथड्स के बारे में ऑलरेडी प्रिपेयर हैं
कि ये जो है 16 से 20 वीक के ड्यूरेशंस में होते हैं और इसमें डॉक्टर्स जो है फिजिकल मोड पे ऑपरेशन करके किसी भी फोइटस को बॉडी से एमिट आउट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट amino synthesis. Most important point is amino-synthesis. It is the best mode to determine the chromosomal abnormalities. ठीक है, amino-synthesis जो होता है generally it is done by AFT. AFT means amniotic fluid test. ये AFT एक टेस्ट होता है before the birth of baby to identify which type of abnormalities the child is facing inside the embryo. उसमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल्स की जो भी संख्या है उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, उसके लिए जनरली जो भी मदर्स या फीमेल बॉडी होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को चेक करवाने के लिए, है ना, इसको यूज करते हैं ताकि वो क्रोमोसोम्स को. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी है कि दे आल्सो यूज द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम मींस वी हैव टू डिटरमाइन द वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल. बच्चा मेल है या फीमेल है ये भी डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट ऑफ द फीमेल पर्सन्स गोज टू द amino-synthesis. So we have discussed 2 points. Amino-synthesis is a special features in which we have to determine the chromosomal abnormalities in the female body, and second is we have to determine the sex determination whether it is male or female. ठीक है, बच्चा है कि वो. But certain cases it is totally banned and it can be done with the using of amniotic fluid test. ठीक है, और by using foetal infections also, है ना, different types of foetal infections are there to insert into the female body and try to collect the different types of materials liquid form to identify the chromosomal abnormality. But it has a high damage point for the female sections. And what is the drawback of amino-synthesis? amino-synthesis means chances of miscarriage. जनरली बहुत सारे इसमें प्रोसेस में ये देखा जाता है कि जो भी फीमेल हैं वो जब amino-synthesis की स्टेज में जाते हैं या चेक करवाने तो उसमें चांसेस ऑफ मिसकैरेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मीन्स डिस्ट्रॉय ऑफ fetus इनसाइड द फीमेल बॉडी. ये बहुत रेयर केसेस में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है मिसकैरेज के चांसेस बन जाते हैं कभी कभार. ठीक है, मिसकैरेज का मीन्स मतलब होता है बिफोर डेवलपिंग ऑफ चाइल्ड गोज टू डाई स्टेज इनसाइड द फीमेल बॉडी. वो पैदा होने से पहले उस स्टेज में डाई हो जाता है. एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब उसको सांस वगैरह लेने में भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड दिस ऑल आर द ड्रॉबैक्स ऑफ amino-synthesis. Okay, so our India and most of the countries has totally banned this type of process. Okay, because most of the peoples are generally wanted to have a child in a male, but they do not want to have a female child. Okay, so that type of process are totally banned. Now next we will discuss the some most important part, and this is infertility. Infertility मतलब होता है generally they are unable to produce their young ones. Okay, they are unable to produce their young ones, but we know that the young ones can be produced by female body, not for male body. But there is a certain cases where मेल एंड फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी. अगर बात करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी का तो उसमें हम ये जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों आते हैं, बट उनमें कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो अलग फॉर्म्स में होते हैं जिस कारण से वो उनको फर्टाइल नहीं बना पाते हैं. जैसे हमने स्टेराइल कपल पढ़ा था. स्टेराइल मतलब दोज हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. दीज आर कॉल्ड स्टेराइल कपल्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल इनफर्टिलिटी. मेल इनफर्टिलिटी क्या कारण होते हैं जिस कारण से जो मेल है वो स्टेराइल रह जाता है. द फर्स्ट पॉइंट इज द सेवरल डिजीजेस व्हिच दे आर फील. ठीक है, ऐसे कुछ डिजीजेस होते हैं जिससे वो गुजर रहा हो. ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं इनसाइड इंटरनल डिजीजेस जिस कारण से वो उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो इनफर्टिलिटी को लीड्स करता है और जो हमारा स्पर्म और ओवम है वो कंबाइन नहीं हो पाता जिस कारण से आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पाता है. सेकंड, द वेट लॉस. द कंटिन्यूसली वेट लॉस ऑफ मेल बॉडी लीड्स टू द इनफर्टिलिटी. जो कंटिन्यू जो वेट लॉस होते हैं, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्पर्म does not secrete by testes and due to the वेट लॉस. जो वेट लॉस के कारण जो भी स्पर्म का जो भी मोटाइल फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाते हैं जिस कारण से बहुत सारे जो मेल हैं वो स्टेराइल रह जाते हैं.
And the third point is that prostatic fluid and reduced number of sperm. I already told you that due to the weight loss, the prostatic fluid and number of sperm is also reduced. ठीक है, जो number of sperms होते हैं वो reduce होने लगते हैं. reduce होना in the sense कि वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो जैसे वो number of sperm वो कम होने लगे, it means the male body goes to sterile stage. ठीक है, male body infertile हो जाता है और वो बच्चे के उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाता. सेकंड, वी हैव टू डिस्कस दैट फीमेल इनफर्टिलिटी. फीमेल इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज जो भी बच्चे पैदा करने का प्रोसेस होता है, इट गोज थ्रू द फीमेल बॉडी. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दे फेसेस? फर्स्ट इज ओवेरियन डिजीज. फीमेल इनफर्टिलिटी मीन्स मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर फेसेस लॉट्स ऑफ ओवेरियन डिजीज. इनको ओवेरियन डिजीज होती है जिस कारण से ये फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस में प्रॉब्लम होता है. दूसरा, यूट्रस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स बॉडी. ओके, दे आर इनमेच्योर. जो यूट्रस होता है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता, या तो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बर्थ ऑफ बेबी. इस कारण से जो फीमेल है वो स्टेराइल रह जाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओबीज स्टेट में. ओबीज मीन्स होता है जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल. most of the females are not able to produce their child due to the obese. ओके, ओबीज मतलब होता है जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, उनमें ये सारे कुछ एक में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो थे मेल और फीमेल, ये इनफर्टिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे. ये क्यों इनफर्टिलिटी होते हैं, क्यों इनफर्टाइल होते हैं, इसका भी कारण मैंने आपको बता दिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेवरल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. Suggest some methods to have a infertile couples to have a child. Okay, कुछ ऐसे तरीके बताना हमें जिससे जो हमारे इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द मेथड इज दैट, सपोज किसी के बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज IVF. IVF means होता है in vitro fertilization. In vitro means outside the body. In vitro fertilization करवाया जाता है, then we have to insert this statement into the female body. Okay, IVF means होता है in vitro fertilization, जिसमें fertilize करवा के female body के अंदर insert किया जाता है, जिस कारण से वो leads to the formation of blastocytes. Okay, morula, gastrula, ये सारे stages को complete करते हुए birth की तरफ आगे बढ़ता है. And next is gamete intrafallopian transfer. सेकेंड पॉइंट इज GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इसका मतलब जो गैमेट है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. ठीक है, गैमेट जब अंदर जाते हैं, जाइगोट वगैरह पूरा बनने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है. एंड द थर्ड इज दैट ZIFT. ओके, ZIFT means zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer means the prepared zygote is inserted into the female body to get the proper stage of प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड. ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब होता है जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर को इंसर्ट किया जाता है. एंड वी नो वेरी वेल द फैलोपियन ट्यूब इज फाउंड इन फीमेल, नॉट फॉर मेल. ओके, सो जाइगोट को बना के जो भी लेबोरेटरीज मेथड्स वगैरह से इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, जिस कारण से जो फीमेल होते हैं वो जो स्टेराइल कपल होते हैं जनरली दे आर capable to produce their young ones. So I think I have covered all the topics of your fourth chapter. If you have any doubt regarding all the topics, you all can ask me in a comment box. Okay, thank you, student.